Assalamu alaikum and a very good evening to you all wonderful people present over here. मैंने अरबी में और इंग्लिश में सलाम किया और भरपूर मुझे उसका सवाब मिला और यहाँ बैठे कोई शख्स को भी उसका सवाब नहीं मिला है। नहीं, सलाम के बाद वालेकुम सलाम होता है, तो मैं फिर से करता हूँ ताकि सब लोग जवाब दें और सबको सवाब मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी भी सवाब मुझे ही मिला है। कैसे पूछे? मैंने जवाब आपसे दिलवाया है, दिल से नहीं बोले हैं आप लोगों ने, मेरे कहने पर आप लोगों ने जवाब दिया है। दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्स फ्रॉम विद इन आपसे आना चाहिए, तो फिर उसका भरपूर सवाब मिलेगा। तो पहली दफा मैंने हक अदा किया सलाम करके, कलाम से पहले सलाम, तो उसका सवाब मुझे मिला। दूसरी दफा जो इतनी गैदरिंग मिल के बैक वक्त वालेकुम अस्सलाम आपने कहा ना, उसका भी मेजर सवाब मुझे ही मिला है क्योंकि मैंने करवाया है आपसे। बहरहाल आइंदा से अगर 10 स्पीकर्स हैं, 50 स्पीकर्स हैं और 50 स्पीकर्स भी सलाम करते हैं, तो यह आप पर फर्ज बनता है कि 50 दफा आपने जवाब देना है वालेकुम अस्सलाम। दिस इज द ब्यूटी of Islam and the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I take this opportunity to thank the power of all powers, the King of all kings, Allah subhanahu wa ta'ala, for blessing me with this splendid opportunity to pay a visit to this institution, which I admire a lot for its determination, for its dedication, and for its result orientation. And tonight, I can say with all assurance, as Dr. Khasrul Islam Sahab was mentioning, that he was so very happy tonight to bring me over here and let me speak before you. But let me tell you, I am even happier than Dr. Khasrul Islam Sahab for coming over here, because it was my dream. I just do not know why I fell in love with Barak Valley, but I always wished and wanted to come over here. I have been to many parts of the world, and every time I met Dr. Khasrul Islam Sahab, I did commit and I made many promises, but I thank Allah that He has made it today. He's made it possible today. I'm so very, very happy. And mashallah, he is a very good human being, a very dedicated, determined and disciplined individual I have come across the nation, I must say. You are very fortunate to have such an amazing, expert, efficient, experienced and enthusiastic educational leader for you all wonderful students, mashallah. Big round of applause for Dr. Khasrul Islam Sahab, mashallah. He did deliver a speech today, but he was not right stating that I've conducted many workshops across the nation, and the workshop that I conducted way back in 2017 was one of the best workshops. That's where he made a mistake. It's not one of the best workshops. It means there may be many other workshops I've done across the nation, but I would say the best workshop I have done with Ajmal Foundation, mashallah. And I got a lot of motivation from Dr. Khasrul Islam Sahab. Hardly a few people had acquaintance with Director Dr. Khasrul Islam Sahab, but I know him through and through. Because as he mentioned in his speech that we used to work from early in the morning until 12 in the night. And I still remember at the end of the workshop, he was mentioning, while addressing the big gathering, he was stating that when he sent the proposal for the personality development workshop, he did mention in his proposal that he would spend 6 hours
for training, 2 hours for girls and 2 hours for boys and 2 hours for teachers. As he mentioned on that day, stating that he did not work for 6 hours, though he emphasized that he would work only for 6 hours, but I have seen him work for 18 hours for Ajmal Foundation. That statement is much bigger than all awards he mentioned tonight. जो awards आपने गिने हैं, उससे ज्यादा बड़ा अवार्ड मुझे डॉक्टर खसरुल इस्लाम साहब से मिला था, जो आपने कहा था कि प्रपोजल दिया जाता है ना कि मैं 6 घंटे काम करूंगा और इतने पैसे लूंगा, तो मैंने 18 घंटे काम किए थे, 6 घंटे मैंने कमिट किया था आपको। उसके बाद मैं चाहता, तो मेरी चॉइस थी कि 18 आवर्स मैं जैसे गुजारना चाहता वैसे गुजार सकता था, मतलब फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, या फिर मेरे कमरे में अंदर से दरवाजा लॉक करके मैं गुजार सकता था। लेकिन मैंने 18 घंटे काम किए, वो आपने नोटिस किया और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के प्रेजेंस में वो मेंशन किया, एंड दैट इज आई थिंक वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ एज वेल। वो इतना मोटिवेशन दिया है मुझे, और शायद उसी की वजह से अल्लाह ने मुझे ये मकबूलियत से नवाजा है और ये कामयाबी से मुझे नवाजा है, और दुनिया में लोग मुझे पसंद करने लगे हैं। देखिए, जो जॉब होता है, जो लोग करते हैं, वो जॉब घड़ी को देखकर करते हैं, तो फिर वो डिटरमिन्ड इंडिविजुअल्स नहीं है। 90% एम्प्लॉयज इस दुनिया में अपने घड़ी को देखकर जॉब करते हैं कि 9 बजे मुझे जाना है और 5 बजे मुझे वापस होना है, और वो 5 बजे की फिक्र शाम के 3 बजे से शुरू होती है कि मुझे वापस घर कब जाना है। इसीलिए ऑफिस भी कामयाब नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशंस भी कामयाब नहीं होते, और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तलबा, स्टूडेंट्स भी कामयाब नहीं होते हैं। एक टीचर घड़ी बार बार देख रहा है, इसका मतलब उसका दिल टीचिंग में नहीं है। मैंने करीब 3 लाख इंडिविजुअल्स को पढ़ाए हैं, आज तक मेरा रब गवाह है, ये जो हाथ है ना, इससे मैंने एक भी स्टूडेंट को मारा नहीं। मैंने 3 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, एक स्टूडेंट को भी मैंने पनिश नहीं किया है, और ना मेरे हाथ में घड़ी होती है ना छड़ी होती है। छड़ी जानते हैं ना आप लोग, किसे कहते हैं? स्टिक को कहते हैं। पढ़ाते वक्त में ना मेरे पास में फोन होता है, ना घड़ी होती है, ना स्टिक होती है। मैं डूब जाता हूं उसमें और पता ही नहीं चलता कि कैसे वक्त गुजर जाता है। कभी रात में 1:30 बजे तक भी पढ़ाया मैंने। यहां भी कोई ट्रेनिंग लेने आगरा 5 स्टार होटल में आए थे, वो शायद यहां पर अगर हैं तो वो भी गवाह देंगे कि 1:30 रात में तब भी पढ़ाया था मैंने। बहरहाल आपसे एक सवाल करता हूं कि अजमल फाउंडेशन कहां है? वेयर इज अजमल फाउंडेशन? जवाब दें, आंसर मी प्लीज। ब्लैंक क्यों हो गए आप लोग? डू यू नो अजमल फाउंडेशन? वेयर इज इट? कहां पर है? हाँ जी, होजाई में, मुनव्वर जमा के दिल में। इसीलिए आपने कहा कि ये इंग्लैंड में भी जाते हैं, इंडिया के कोने कोने में जाते हैं, तो अजमल फाउंडेशन को प्रेजेंट करते हैं। आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अजमल फाउंडेशन। मैं जहां भी जाता हूं अजमल फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स को रखता हूं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, सिराजुद्दीन अजमल साहब के विजन को रखता हूं, और डॉक्टर खसरुल इस्लाम साहब के जो 3 Ds हैं, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, ये 3 क्वालिटीज को लोगों को बताता हूं। और आज भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब, जो 7000 मसाजिद बनाए हैं, 700 मदरसे बनाए हैं, और इनन्यूमरेबल मकातिब बनाए हैं, और वही फुल स्टॉप नहीं रखा आपने। ही इज रनिंग 5 मेडिकल कॉलेजेस। कैन यू बिलीव?
an alim deen, the first scholar of India who's established a medical college, MBBS college. Apart from that, he is running D.Ed, B.Ed, M.Ed colleges, D.Pharm, B.Pharm and M.Pharm colleges, engineering colleges and many schools, and now he's rolled up his sleeves to establish 5 universities. और उनके फर्जन मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी है, वो अभी प्रेसिडेंट है. He is the CEO of Medical College and president of the whole organization. Gem of a person, very knowledgeable, very dedicated individual. उनके साथ मैं अफ्रीका में जाना हुआ, यूके के 15 सिटीज में लेक्चर्स दिए और इंडिया के बहुत से स्टेट्स में जाकर मैं लेक्चर दे रहा हूं. और उन्हें मैं आज बता रहा था, इदारे हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन उस इदारे में डॉक्टर खसरुल इस्लाम जैसा कोई बंदा मिल जाता है तो वो फिर इदारा चांद जैसा चमक जाता है. I must say Ajmal Foundation is also fortunate to have such a dynamic leader that is Dr. Khasrul Islam साहब. अब इसके बाद डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन ये मैग्नेट है अजमल फाउंडेशन के. इनके पास पूरे टीचिंग फैकल्टी ऐसे खींचे चले आते हैं, फिर आने के बाद जा नहीं सकते, वरना ऑफर्स बड़े दिए जाते हैं उनको. मैथ टीचर्स को तो कैसे कैसे ऑफर्स मिलते हैं. वैसे आप लोग का जो सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी वैसे ही है जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे, जो फिजिक्स बड़ा टफ लगता है. देखिए आपके दिलों को भी जानता हूं मैं, फिजिक्स को बड़ा टफ मानते हैं. तो मैं आपके डेडिकेशन को भी सलाम करता हूं कि आपने ऐसा एस्केलेट किया है और अजमल फाउंडेशन इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह नजर बस से बचाए. और मेरे उस्ताद डॉक्टर रफीक साहब जो मेरे मेंटर है, वे बैक इन 2016 when we visited for the first time Amar Thapa with about 30 students I think under the shed he was studying. कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन मेरे मेंटर ने क्या देखा उसमें पता नहीं. डॉक्टर खसरुल इस्लाम साहब का हाथ पकड़कर कहा कि तारीख जो रचते हैं ना, उनकी शुरुआत ऐसे ही होती है. विजन जिनका होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं, दे बिलीव इन डूइंग. वो शुरू करने में बिलीव करते हैं. एक दिन आएगा होजाई में थैलों में पैसे लेकर आएंगे और कतार में खड़े रहेंगे डिसिप्लिन से लोग, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा. तो वो दिन आ चुका है माशाअल्लाह. बहुत से बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अजमल फाउंडेशन इज हेल्पलेस. उतने इंस्टीट्यूशंस और बना नहीं पाए, आने वाले दिनों में बनाएंगे इंशाअल्लाह. और ड्यूरिंग माय स्टे आई कंडक्टेड 40-day workshops twice here at Ajmal Foundation, and I got a chance to interact with many boys and girls, especially girls जो गरीब लड़कियां आसाम के कोने कोने गांव में, उनके लिए मरियम अजमल जो कॉलेज है ना, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम नहीं है. जो गरीब बच्चियां ख्वाब देखती हैं कि जिंदगी में एक बार मैं मरियम अजमल कॉलेज को देखूं मेरी आंखों से, ऐसे भी गरीब बच्चियां हैं जो वहां तक जाने का पैसा भी नहीं है उनके पास में, फेयर भी नहीं है, लेकिन एक ड्रीम है. एक ड्रीम होता ना किसी को ताजमहल देखने का, बिल्कुल उसी तरह कई बच्चियों का ड्रीम है आजासाब में कि एक दफा जाओ मैं कैंपस को देख लो. और वैसे गरीब बच्चियां माशाअल्लाह आज एप्रन पहनी हुई हैं. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सच प्रॉमिसिंग गर्ल्स ऑफ दिस आसाम माशाअल्लाह. वो लड़कियों ने कर दिखाया है. देखिए इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया तो फिर दुनिया में अल्लाह ने बहुत से चीजें बनाई. इसमें कई जानवर हैं, कई परिंदे हैं, कई दरिंदे हैं, कुछ ऐसे भी हैं मच्छर जिसको कहते हैं, मक्खी जिसको कहते हैं, कुछ ऐसे भी मखलूक अल्लाह के हैं जिसके 4-4 दिमाग, ब्रेन्स हैं. कितने हैं? 4-4. उसका साइज कितना है मेजर भी नहीं कर सकते आप, लेकिन ब्रेन 4 है. और इतने इतने एनिमल्स हैं, वो दौड़ने में बहुत तेज है. वी कैन नेवर इवन इमेजिन टू आउटरन देम. हम लोग कभी हरा ही नहीं सकते. क्या आप हरन से तेज दौड़ सकते हैं?
शेर से तेज दौड़ सकते हो? नहीं दौड़ सकते। आप मछलियों की तरह तैर सकते हो? नहीं तैर सकते। आप परिंदों की तरह उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते। फिर भी अल्लाह ऐसा क्यों कहता है कि मैंने इस दुनिया को बनाया, जमीन से आसमान तक जितने भी चीजें मैंने बनाई, वो तमाम चीजों में सबसे आला, सबसे बेहतरीन, सबसे सुप्रीम अगर कोई है तो वो मैं, आप और हम सब, वो इंसान है। ये अल्लाह ने कहा है, कोई इंसान ने नहीं कहा, ये अल्लाह ने कहा। अशरफुल मखलूकात, अशरफ यानी आला को कहते हैं, सुप्रीम अशरफ। मखलूक क्रीचर को कहते हैं, मखलूकात प्लूरल है, तो अशरफुल मखलूकात यानी तमाम क्रीचर्स में सबसे बेहतरीन क्रीचर कौन है? आप है। यहां जो बैठे बॉयज एंड गर्ल्स है ना, आप सब लोग हैं, लेकिन आप लोग को पता ही नहीं है कि आप कितने अजीम शख्सियत हैं, कितने जबरदस्त इंडिविजुअल्स हैं। आपको मालूम नहीं कि आप प्राइसलेस हैं। हर चीज का एक प्राइस होता है। आईफोन फोन्स में लीड करता है, यस और नो? आईफोन से और कोई बेहतर फोन है? नहीं है। क्या प्राइस है आईफोन का? हाँ जी, कैन एनीबॉडी से? बॉयज एंड गर्ल्स बताएं मुझे, आईफोन का प्राइस क्या हो सकता है? हाँ जी, 2000? हाँ जी, बॉयज बड़े आशिक है आईफोन के। हाँ, 1.5 लाख या फिर 2 लाख भी रख लें आप। लेकिन मैं अगर आईफोन ले आकर कहूं आपसे कि ये 10 लाख का है आईफोन, खरीदिए, तो आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्यों? आपको उसका प्राइस पता है कि ये 1.5 से 2 लाख ही इसका प्राइस है। इससे ज्यादा जो भी देता है वो बेवकूफ नंबर 1 है। हर एक चीज दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, उसका प्राइस है। गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस है। मर्सिडीज बेंज है, मर्सिडीज बेंज का प्राइस है। रोल्स रॉयस है, भले वो 10 करोड़ की है, लेकिन उसका प्राइस फिक्स्ड है। लेकिन जो अल्लाह ने आपको आंख दिए हैं, जो हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, इसका आप प्राइस नहीं लगा सकते। दुनिया में बिकने वाली कितनी चीजें होंगी? बहुत से है ना जो बिकते हैं बाजार में। दुनिया में बिकने वाले तमाम चीजों को बेच दें और उसका पैसा लाकर मुझे दे दे मुनव्वर जमा को, कंडीशन पर कि आप ये एक उंगली दीजिए, कसम खुदा की इंशाअल्लाह मुनव्वर जमा ये उंगली नहीं देगा, क्योंकि ये उंगली अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिली है मुझे। ये तो दुनियावी चीजें हैं। तो एक एक चीज जो अल्लाह ने आपको दिया है ये प्राइसलेस है। और उन तमाम चीजों में अशरफ क्यों बोला है अल्लाह ने? आंख एनिमल्स को भी है, हाथ एनिमल्स को भी है जो हमसे अच्छा लड़ते हैं, पैर एनिमल्स को भी है, हमसे तेज दौड़ते हैं। लेकिन हम आला क्यों है? हम आला इसलिए है कि अल्लाह ने हमें बेहतरीन दिमाग दिया है। जानवरों को भी दिमाग दिया अल्लाह ने, परिंदों को भी दिमाग दिया अल्लाह ने, लेकिन सोचने की सलाहियत उनमें ज्यादा नहीं दिया, बहुत ही लिमिटेड। इस दुनिया में जितने जानवर हैं उन्हें नहीं पता कि कल सुबह कितने बजे वो लोग जागने वाले हैं और कल का क्या स्केड्यूल है, कल उन्हें क्या क्या करना है, नेक्स्ट हाफ एन आवर वो क्या करने वाले हैं, ये भी नहीं पता होता है उन्हें। कोई प्लानिंग नहीं होती है। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक मच्छी है, फिश के बारे में पढ़ रहा था। उसकी लाइफ स्पैन है 507 ईयर्स, और 507 ईयर्स वो गुजारती है जिंदगी पानी में। क्या उसका कोई गोल होता है? कोई एम्बिशन होता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे समंदर का किंग बनना है? कोई गोल नहीं होता है, कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं। ये ड्रीम्स, डिजायर्स, एम्बिशंस, ये जो ख्वाहिशात है, ये सिर्फ इंसानों के हैं। इंसान जानवरों से तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन इंसान ने ऐसे मशीन इजाद किए हैं, बेहतरीन व्हीकल्स कायम किए गए हैं, इन्वेंट किए गए, बनाए गए हैं, जो तमाम दौड़ने वाले जानवर जितने दुनिया में बने हैं उससे तेज इंसान की बनाई हुई गाड़ी, व्हीकल चलती है। और परिंदे जैसा इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन ऐसे एयरप्लेन्स बनाए गए, ऐसे रॉकेट्स बनाए गए हैं, तमाम परिंदों से 1000 गुना तेज इंसान उड़ रहा है। एक किनारे से एक किनारे तक मछली बड़े आसानी से तैरती है,
इंसान नहीं तैर सकता, लेकिन एक शिप बनाकर इंसान ने प्रूफ किया कि हम समंदरों का भी सैर कर सकते हैं। तो ये इंसान ने क्या इस्तेमाल किया बनाने के लिए? हाथों का इस्तेमाल हुआ है, पैरों का इस्तेमाल किया है, किडनीज का इस्तेमाल किया है, लंग्स का इस्तेमाल किया है, नोज का इस्तेमाल किया है। किसका किया है? सबसे पहले किया है तो ब्रेन का किया है। जो यहां बैठे हर इंसान में वो ब्रेन है, और ये बेहतरीन गिफ्ट अल्लाह ने इंसानों को दिया है। लेकिन इंसान जैसा नाशुक्रगुजार शायद ही कोई होंगे। वी आर वेरी अनग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यहां जितने तलबा बैठे हैं, जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, you have that ability to do wonders in your lives. आप वंडर्स कर सकते हैं, और वंडर्स करने के लिए ही आप सब लोग पैदा हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है, कामयाब इंसान को अगर होना है, यहां कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? बॉयज एंड गर्ल्स, रेज योर हैंड्स। सब लोग होना चाहते हैं, माशाअल्लाह। तो सबसे पहली जो सीढ़ी है वो इरादा होना इंसान में। सबसे पहले नीयत होना, इंटेंशन होना कि मुझे क्या करना है। अब वो कैसे करना है वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंटेंशन, नीयत, इरादा करना इंसान कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, बाय हुक और क्रुक। कुछ भी करे मुझे वहां तक जाना है, कुछ भी हो जाए। मुझे 2-3 साल के बाद नीट क्रैक करना है, 5-6 साल के बाद मुझे एप्रन पहनना है। दैट इज माय अल्टीमेट गोल। ये गोल, ये इरादा आपने बनाना, और सिर्फ इरादे से इंसान को मंजिल नहीं मिलती है। इरादे के साथ आपने तलाश करना है कि अच्छा इदारा कहां है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म सीखने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े आपको, तो आप चीन तक जाएं। इसका मतलब तलाश करें। जैसे ईदेन पर बॉयज एंड गर्ल्स, यंगस्टर्स जाकर दुकानों में कैसे शर्ट्स, ड्रेसेस तलाश करते हैं, पकड़ते हैं, फील करते हैं, पहनते हैं, ट्रायल करते हैं, सेल्फी लेते हैं, फ्रेंड्स को भेजते हैं, ओपिनियन लेते हैं कि ये ड्रेस मैं लूं कि नहीं, कैसा मैं दिख रहा हूं, कैसी मैं दिख रही हूं। अब उसके बाद वहां से रेस्पॉन्स आता है ठीक नहीं है, तो फिर आप छोड़ देते हैं, दूसरी शॉप में जाते हैं। कभी डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई, बराक वैली में कोई शॉप नहीं है, मैं गुवाहाटी में शॉपिंग करूंगा, मैं मुंबई में शॉपिंग करूंगा, मैं कोलकाता में शॉपिंग करूंगा। कपड़े के लिए आप कहां कहां ट्रैवल कर रहे हो? इदारा भी ऐसा ही तलाश करना आपने। एक इरादा बेहतरीन होना चाहिए, मुसम्मम इरादा जिसको बोलते हैं ना, वेल डिटरमिन्ड इंटेंशन है आपका कि मुझे ये करना ही करना है। दूसरा, इदारा तलाश करना। अगर आपको एक अच्छा इदारा मिलता है, योर हाफ जॉब इज डन, आपका आधा गोल अचीव हो चुका है। क्योंकि अच्छा इदारा उसे कहा जाता है जिसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसके एम्बिशंस होते हैं, और जिनकी फैकल्टी वेल डिटरमिन्ड, वेल डिसिप्लिन, वेल डेडिकेटेड होती है। वो आपका आधा काम पूरा कर देते हैं, माशाअल्लाह। अब आपको अगर अच्छा, आप मुसम्मम इरादे के साथ बेहतरीन इदारे में आए हो, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी में जाकर वंडर्स करना चाहते हैं, यह आपका इरादा है, तो स्टेप 1 आप कामयाब हो गए। यस और नो? जवाब दें। लड़कियां दे रही हैं, लड़के नहीं। यस नो में जवाब दें। Do you want to accomplish your goals? By becoming doctors and potential engineers. ये पहला स्टेप, आप कामयाब है। दूसरा मैंने क्या कहा? इदारा बेहतरीन तलाश करना है। तो माशाअल्लाह, you are very lucky individuals कि आपने एक बेहतरीन इदारा तलाश किया है जिसका नाम है अजमल सुपर 40। ये नाम में ही वो कशिश है, वो मोटिवेशन है, वो जज्बा है कि अजमल सुपर 40 में जाए तो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। तो आपने दूसरा स्टेप में भी 100 में 100 मार्क्स लिए हैं। एक तो पहला स्टेप 100 में 100, दूसरा स्टेप अच्छे इदारे में तालीम हासिल करना, वो भी कामयाब हो गए।
लेकिन तीसरा जो अहम स्टेप है वो है वालिदैन की दुआ। आज 10 पेरेंट्स में 7 पेरेंट्स परेशान है अपने बच्चों को लेकर। दे आर बिहेविंग रफ टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। आपको एक चीज मैं बताता चलूं जो सब लोग जानते हैं लेकिन बार बार बताना बहुत जरूरी है। ये जो दिन है, ये दिनों में सबसे बेहतरीन दिन होता है वो जुमा होता है, जो आज का दिन है। इसको दिनों का सरदार कहते हैं। और महीनों का सरदार क्या है? रमजान है। माशाल्लाह, एक दो ही जवाब दे रहे हैं भाई। आर यू विथ मी? आप लोग को नींद तो नहीं आ रही है? हालांकि नींद मुझे आना चाहिए। आई हैव टेकन सेडेटिव्स, मुझे जबरदस्त बुखार और सर्दी है, हाथ में विक्स इनहेलर है और मैं एंटी एलर्जिक टैबलेट्स लिया हूं। आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि एंटी एलर्जिक टैबलेट लेने से क्या होता है। यू गेट इनटू द स्टेट ऑफ सेडेशन, नींद की गुनूदगी रहती है। तो कल रात भी मैंने टैबलेट्स लिए, आज सुबह भी मैंने टैबलेट्स लिए और नींद की गुनूदगी में आई एम हाफ asleep now but still I am talking to you. I have that passion and enthusiasm in me but I don't see that. आप लोग मेरे सवाल के जवाब देते रहे तो मैं समझूंगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वरना ऐसा लगेगा कि आप लोग सो रहे हैं। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? अच्छा, मुझसे पहले जो एंकरिंग कर रहे थे, बहुत से अशार, बड़े प्यारे अशार आपने पढ़े थे, तो बहुत से लड़कों ने वाह 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 कहा। वो सुना आपने? वो सारे बच्चों को बुलाऊंगा कि एक अशार सुनाओ। उन्होंने क्या कहा जिस पर आपने वाह वाह कहा? कोई नहीं सुना पाएगा। झूठे साहब, यानी खाली ऐसे ही बोले। उन्होंने सुना लेकिन समझे नहीं। ऐसे ही बच्चे क्लास में गड़बड़ करते हैं, सुनते लेकिन सब्जेक्ट ही नहीं समझते। वाह 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 वाह, डू यू गेट इट? तो सब बोलते हैं यस, नहीं ऐसा ही बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं मुनव्वर ज़मानी टीचर का डायलॉग कह रहा हूं मैं। टीचर पढ़ा कर कहता है डू यू गेट इट, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, लेकिन नहीं होता है वो। बहरहाल वापस मैं टॉपिक पर आता हूं। दिनों का सरदार जुमा, महीने का सरदार रमजान और एंजल्स के सरदार बताएं भाई। बड़े लोग ना बताएं। स्टूडेंट्स, लेट द फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आंसर माय क्वेश्चन। हाँ जी, जिब्रील अलैहिस्सलाम, गैब्रियल जो क्रिश्चियंस कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लेकर उतरा करते थे। अच्छा, ये बताएं मुझे सबसे आसान क्वेश्चन। अगर 250 करोड़ मुसलमान इस दुनिया में रहते हैं तो मुझे यकीन है कि सारे 250 करोड़ इंसानों को यह जवाब मालूम होना चाहिए। प्रॉफिट्स के सरदार कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने 4 कहे, दिनों का सरदार, फिर महीनों का सरदार, फिर एंजल्स के सरदार, फिर प्रॉफिट्स के सरदार। रमजान का महीना था, मेंबर पर तशरीफ फरमा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन है? ये एंजल्स के सरदार है। और ये क्या कहते हैं कि बर्बाद हो जाए वो शख्स, यानी उसका खसारा हो जाए, वो नुकसान हो जाए उसको, वो शख्स जो रमजान का महीना पाले हुए और फिर उसकी मगफिरत ना हो। इतना जबरदस्त महीना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने ऑफर्स दे देते हैं। अल्लाह तो है रहीम, करीम, रहमान, लेकिन मिलियन बिलियन टाइम्स और ज्यादा खोल देते हैं ऑफर्स। माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स रमजान को पाकर रमजान के बाद उसके लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, फिर वही गुनाह किए जा रहा है जो माजी पास में किया करता था। रमजान में नमाजें पढ़ ली, रोजे रखे, फिर वही गुनाह कर रहा है जो पास में किया करता था। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। और आमीन बोलने वाले कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ करने वाले कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। आमीन कहने वाले कौन?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महीना कौन सा? रमजान। जगह कौन सी? मस्जिद। अब वो कबूल होगी कि नहीं होगी? अब फिर दूसरी दफा कहते हैं कि बर्बाद हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए जो वालिदैन पाए अपनी जिंदगी में और वो वालिदैन को नाराज करें, वालिदैन को सताएं, वालिदैन को परेशान करें, वालिदैन से बदसलूकी से बात करें, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बर्बाद हो जाए ऐसा शख्स। और आमीन कौन कह रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और जवाबन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नहीं कहते हैं आप, तो फिर से दुआ आती है जिब्रील अलैहिस्सलाम की, कोई मोहम्मद का नाम सुने और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे तो बर्बाद हो जाए वैसा शख्स। तो आमीन कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें जो दूसरे नंबर पे मैंने कहा था पेरेंट्स की दुआ। इस दुनिया में 850 करोड़ लोग रहते हैं, 850 करोड़ में इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज बहुत है, जैसे बिल गेट्स है और बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो सारे इकट्ठा हो जाए आपको कामयाब करने के लिए। हो सकता है कि आप कामयाब हो जाए, लेकिन आपका रब आपसे नाराज है। सब लोग एडमायर करते हैं, आपके कामयाबी को देखकर इंस्पिरेशन लेते हैं, सब लोग एडमायर करते हैं, लेकिन रब आपसे नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि आप अपने वालिदैन की दुआएं नहीं लेते हो, वालिदैन को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वालिदैन को गाली देते हो, वालिदैन को ऊंची आवाज में बात करते हो। आपको कुरान पर यकीन है? आप लोग मुझे जवाब दें ऊंची आवाज में। अल्लाह के अर्श तक ये आवाज जानी चाहिए, ठीक है? मैं सवाल करता हूं आप सब लोग से, क्या आप लोग अल्लाह को मानते हैं? फिर से सवाल, क्या आप लोग अल्लाह को मानते हैं? क्या आप लोग अल्लाह की मानते हैं? कम आवाज आ रही है। अल्लाह को मानना ये बहुत बड़ा कमाल नहीं है। कमाल किस में है? अल्लाह की मानने में है। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन को एंड की। अल्लाह को तो सब मानते हैं, अल्लाह की जो मानता है अल्लाह उससे राजी होता है। अल्लाह की मानने में कमाल है। आज हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। तो अगर आप अल्लाह की मानते हैं तो फिर आपको अल्लाह की भेजी हुई किताब कुरान मजीद को भी मानना पड़ेगा। ये सर आप हर एक आयत पर ईमान ले आते हो या कंडीशन है आपका कि मैं इस आयत पर ईमान ले आता हूं और इस आयत पर मैं नहीं ले आता हूं? जवाब दे मुझे। सारी आयतों पर ईमान ले आते हो तो उसमें एक कुरान में मेंशन है, आप अपने पेरेंट्स को उफ तक नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते आप अपने पेरेंट्स को। लेकिन आज का यूथ अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करता है, आप यूथ से बेहतर कौन जानता है? तो अल्लाह की मदद नहीं है आप लोग के साथ में अगर आप ऐसा कर रहे हो। आप कितना भी मेहनत कर लें, आप डॉक्टर भी बन जाए, डॉक्टर बनने के बाद एक ऑपरेशन करोगे, फेल हो जाएगा, पेशेंट मर जाएगा, पूरे गांव वाले आकर आपके हाथ पैर तोड़ देंगे, इतना बदनाम कर देंगे आपको। आप एक दौर में खुश थे कि मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन ऐसे मुसीबत में डालेगा अल्लाह ले आकर आपको कि उस मुसीबत से फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इतने बदनाम हो जाओगे आप कि उस बदनामगी से अपना चेहरा दुनिया वालों को नहीं दिखा सकते। छुप छुप कर जंगलों में जाकर जिंदगी गुजारना पड़ेगा आप लोग को। क्यों? अल्लाह आपसे राजी नहीं था। आप अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से आप इंजीनियर, डॉक्टर तो बन गए, लेकिन उसमें अल्लाह की रजामंदी नहीं थी। तो ये अल्लाह की रजामंदी कहां से आएगी आपको बताएं? आपके वालिदैन को आपने रिस्पेक्ट करना है। वो अपने ख्वाहिशात को मारकर आपके लिए जी रहे हैं और आप अपना स्टार बनाते हो शाहरुख खान को, अपना स्टार बनाते हो रोनाल्डो को, अपना स्टार बनाते हो विराट कोहली को, और लड़कियां बनाती है हीरोइंस को। उनके स्टार्स कौन है कभी पूछे जाकर? तो उनके जुबान से विराट कोहली, रोनाल्डो, शाहरुख खान ये नहीं आएगा।
उनके जुबान पर आपके नाम आएंगे। क्यों? उनके स्टार्स आप हैं। जब विराट कोहली बैट लेकर मैदान में उतरता है तो 135 करोड़ लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं विराट कोहली से? सेंचुरी एक्सपेक्ट करते हैं। और वो सेंचुरी मारता है कि नहीं मारता है? अभी तो लेवल कर दिया उसने सचिन तेंदुलकर को, और आने वाले दिनों में वो रिकॉर्ड भी ब्रेक करेगा। तो पूरा नेशन एक्सपेक्ट करता है, एवरी टाइम विराट कोहली गेट्स इनटू द फील्ड द होल नेशन स्टैंड्स अप and expects him to score a century, and he proved it. He scored century not once, not twice, not thrice, but many times. बहुत दफा उसने सेंचुरी लगाकर प्रूव किया कि I am the star. You expect and see, I'm making it happen. बिल्कुल उसी तरह आप जैसे विराट कोहली बैट लेकर ग्राउंड में उतरता है, एक नीट का भी एग्जाम होता है, या फिर 10th 9th स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के एग्जाम्स होते हैं, हाथ में बैट नहीं होता है, हाथ में एग्जाम का पैड होता है। और पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं करती है, सिर्फ बाप मां थोड़ा कम ही एक्सपेक्ट करती है। लेकिन बाप के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, क्योंकि बाप का हीरो आप है, कि एक दफा ये मेरा लाल मैथ्स में सेंचुरी लगा दे, 100 में 100 लाए, एक दफा मेरी गुड़िया मैथ में 100 में 100 स्कोर करे। वो स्टैंडर्ड 1 में एक्सपेक्टेशंस थे, आपने फुलफिल नहीं किए। ग्रेड 2 में गए आप, वहां भी फुलफिल नहीं किए। ग्रेड 3 में गए हो, वहां भी फुलफिल नहीं किया। इस तरह से आप 12th स्टैंडर्ड तक चले गए, एक भी सेंचुरी नहीं लगाई आपने। विराट कोहली से एक्सपेक्ट करता है नेशन, और वो सेंचुरी आफ्टर सेंचुरीज लगाकर दिखा रहा है सबको। लेकिन बाप एक्सपेक्ट करता है कि बेटे से कभी एक दफा मैथ में 100 मार दे। वो भी तो एक बैट लेकर जाता है एग्जाम के मैदान में, और जब घर वापस आता है तो कहता है कि इतने मिस्टेक्स हुए हैं। तो आप कभी एक दफा सोचो बैठकर कि आप कामयाब होंगे, कसम खुदा की आपसे ज्यादा खुश आपके वालिद होंगे। लेकिन इसका रियलाइजेशन आज यंगस्टर्स को नहीं है। आपको पता होना चाहिए, सुबह 9 बजे बाप घर से बाहर कदम रखता है, कोई 50 डिग्रीज में, कोई सर्दियों में, कोई धूप में, मेहनत करके। पुणे में ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो बॉम्बे रोज ट्रैवल करते हैं, 4 घंटे जाने होते हैं, 4 घंटे आने होते हैं, 8 घंटे। फिर स्टेशन से रेस्पेक्टिव ऑफिसेस पहुंचने में फिर और 2 घंटे लगते हैं। गोया ट्रैवलिंग में वो 10 घंटे बिता रहा है। कभी ऐसा होता है रात में रोजाना 10 बजे पहुंचता है, फिर सुबह 4 बजे निकलना होता है। कभी 10 बजे की ट्रेन रात में 1 बजे पहुंचती है, तो वो घड़ी देखता है बाप, और 3 घंटे बचे हैं, मैं जाकर मेरी वाइफ को क्यों डिस्टर्ब करूं, यही प्लेटफॉर्म पे सो जाता हूं। ऐसे कई बाप प्लेटफॉर्म में सोते हैं सर्दियों में 3 बजे, 3 घंटे, फिर 4 बजे, फिर वही मैले कपड़ों पर, रिंकल्स पर वो ऑफिस जाता है बॉम्बे। फिर वहां 12 घंटे मेहनत करके रात में 10 बजे पहुंचता है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? अगर कोई जाकर उससे पूछे तो वो कहता है मेरे 2 लड़के 1 लड़की है, मैं चाहता हूं ये 3 मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं पढ़कर, इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। लेकिन लड़के लड़कियों को 1% भी इसका रियलाइजेशन नहीं है। उनको जो प्लेजर है वो अपने फ्रेंड्स में लगता है, उनको दोस्तों में दिखता है प्लेजर। इसलिए कहता हूं वालिदैन के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों मेहनत कर रहे हैं, कभी आप सोचें, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में वो लोग आपको कितना चाहते हैं और वो आप लोग के लिए जी रहे हैं। इसीलिए वालिदैन की दुआओं के बगैर आप डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, तो खसारे में रहने वाले हैं, यानी नुकसान होने वाला है फ्यूचर में आपका। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। नंबर 1 इरादा मुसम्मम होना, नंबर 2 इदारा बेहतरीन होना, वो 2 में आप कामयाब। लेकिन क्या तीसरे में आपको 100 में 100 मार्क्स मिलते हैं? क्या अगर मैं और खसरुल सर दोनों मिलकर सारे पेरेंट्स को फोन लगाए और पूछे क्या आप अपने बच्चे से राजी हैं, आर यू हैप्पी विथ योर चाइल्ड,
उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, जेन्युइन रिपोर्ट आप दें, तो क्या आंसर आएगा आपके पेरेंट्स से? ये बहुत मेजर इशू है, जिस पर अगर आप 100 में 100 मार्क्स ले आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि इस दुनिया में 850 करोड़ लोग मिलकर भी आपको हरा नहीं सकते। मंजिल तक आप जाने की कोशिश कर रहे हो, पूरी दुनिया मिलकर भी रोक नहीं सकती आपको। किस लिए? कि वालिदैन की दुआओं के साथ आप सफर तय कर रहे हो, और वालिदैन की दुआएं आपके साथ है तो रब फिर आपके साथ है, वो राजी है, और जब वो राजी होता है फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। लिहाजा ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग के इल्म में ले आया हूं। और जो 4th पॉइंट है वो बहुत ही क्रिटिकल है, और इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। सोबत बहुत मेजर रोल अदा करता है गोल अचीव करने में। सोबत किसे कहते हैं? कंपनी को कहते हैं, दोस्ताना। अंग्रेजी में एक कहावत आपने सुन रखा होगा, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कंपनी यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो कंपनी नहीं, साथी को कहते हैं, दोस्त को। एक क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं। एक बंदा 10th पास करके 11th में जाता है, नए कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो 40 बच्चों से वो दोस्ती नहीं करता है, 40 लड़कियों से वो दोस्ती नहीं करती है, बमुश्किल 3 या 5 बच्चों से ही दोस्ती होती है। आप अपने बचपन से देख ले, आपके क्लासरूम में कितने थे स्टूडेंट्स, और आपने किससे यारी लगाई है। आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन है? एक होते हैं फ्रेंड और दूसरे होते हैं क्लोज फ्रेंड। When you were in 10th standard, did you have close friends? Answer me please. क्या ऐसा लगता था कि इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं जी नहीं सकता, बस इससे वो बहुत अच्छा लगता है? ये क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। ये 3 या मैक्स 5, and these 3 students whom you regard the best friends, they can make you and at the same time they can break you. ये आपको आबाद भी करते हैं, एट द सेम टाइम ये आपको बर्बाद भी करते हैं। ये आपको बुलंदियों तक ले भी जा सकते हैं, ये आपको जमीन पर गिरा भी सकते हैं। चॉइस इज योर्स। आप किसके साथ उठते बैठते हो, इट मैटर्स अ लॉट। आपका इदारा वर्ल्ड का बेस्ट हो सकता है, ऑक्सफोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर नीट का मानो कि इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो वहां ट्रेनिंग लेने से आप नीट क्रैक नहीं कर सकते। वहां किसके साथ आप उठते बैठते हो। अच्छा इदारा तो अच्छे टीचर्स लाजिम रहते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो जो 3 बंदे हैं जिसके साथ आपको उठना बैठना बहुत पसंद है, वो 3 बंदे मेजर इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा करते हैं। तो वो 3 बंदे कैसे होना चाहिए? एक शर्ट लेने के लिए आप पूरे दुकानें जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जा जाकर आप ढूंढ ढूंढ कर कपड़े लेते हो। बिल्कुल उसी तरह जब आप फ्रेंडशिप करते हो तो आपने कुछ क्वालिटीज देखना। सबसे पहले कि इज दैट पर्सन गॉड फियरिंग और नॉट, ये इंसान अल्लाह से डरता है या नहीं डरता है। डरता है तो फिर आपका फ्रेंड बन सकता है। अगर वो अल्लाह से खौफ नहीं है उसको, तो फिर इमीडिएट डिसीजन लेना आपने कि मैंने इससे दोस्ती नहीं करनी है, मुझे इससे सोशल डिस्टेंसिंग करना है। भले वो मेरी क्लास में रहेगा लेकिन आई स्टे अवे फ्रॉम हिम, मैं 10 फीट दूर मेंटेन करूंगा इससे, इसके साथ मैं जिंदगी बसर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से नहीं डरता है। जो अल्लाह से नहीं डर रहा है उसको फिर इस दुनिया में कुछ भी पाले, अल्लाह उससे राजी नहीं है। दूसरी क्वालिटी आपने देखना कि क्या ये अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करता है। अब ये पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आपने डिसीजन लेना इमीडिएटली कि मैं इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, आई कैन नॉट स्पेंड टाइम विद देम। मैं इस लड़की से दोस्ती नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती?
क्योंकि ये अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ये अपने अल्लाह से नहीं डर रही है। इमीडिएट आपने डिलीट करना उसको। क्या ये लड़का, क्या ये लड़की नमाजें भी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? मौजन साहब मोहल्ले के होते हैं, जाकर पूछना, मौजन साहब एक सवाल है आपसे कि मैं इस लड़के से दोस्ती करना है, ये फलाने मोहल्ले में मैं रहता हूं और जिस लड़के के बारे में मैं इंक्वायरी करने आया हूं वो आपके मोहल्ले में रहता है, क्या वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है आकर? तो मौजन साहब कहते हैं कि भाई जुमा जुमा आता है, वो जुमे का मुसलमान है। इमीडिएट डिसीजन लेना कि मैं इसके साथ क्लासरूम में सेम बेंच पर या सेम रो में नहीं बैठूंगा मैं, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तोहफा है इंसानों पर नमाज, वही फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर मैं इसके साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकता, 2 साल में इसके साथ बर्बाद नहीं करूंगा। और फिर और एक सवाल आपने करना कि इसके एकेडमिक गोल्स क्या है, इसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या है, इसको 10th में कितने मार्क्स आए हैं, 9th में क्या स्कोर किया इसने, अब फिलहाल इसका गोल क्या है, इसका एम्बिशन क्या है, इसके डिजायर्स क्या है, इसके ड्रीम्स क्या है। जब आप ये डिजायर, ड्रीम्स, एम्बिशंस ये चेक करने जाओगे, स्क्रीनिंग करने जाओगे, तो उसमें कोई सिगरेट पीने वाला मिलेगा, कोई ड्रग एडिक्ट मिलेगा, कोई इश्क बाजी में मसरूफ अपनी जिंदगी है, इलीगल अफेयर्स में कोई फंसा हुआ है, कोई जिना में मुलविस है, कोई सोशल मीडिया में एडिक्शन है, उसका शौक सोशल मीडिया पर है, उसका शौक यूट्यूब पर वीडियोस बनाना है, उसका शौक लड़कियों के पीछे जाना है, उसका शौक होटल में जाकर मजेदार खाने खाने हैं। ये चीजें जब आप देखोगे इमीडिएट, ये सब कब होते हैं? पहले 3 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीने में हो जाते हैं। जब आप 10th से 11th में जाते हो, 1 हफ्ते में ये सारी चीजें हो जाती है। अब जब आप 1 हफ्ते में आप दोस्ती कर लेते हो तो फिर वो यारी में तब्दील हो जाती है, फिर आप दूर नहीं हो सकते उससे। इसलिए ये जो चौथा पॉइंट मैं आप लोग के इल्म में ले आ रहा हूं ना, इसकी वजह से 70% टैलेंटेड स्टूडेंट्स फेल टू अकॉम्प्लिश देयर गोल्स, सिर्फ ये रीजन की वजह से। उसके पास में नॉलेज है, पोटेंशियल है, मेहनत करने की एबिलिटी है, फिर भी वो फेल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसने गलत सोबत अपनाई अपनी जिंदगी में, गलत बच्चे, गलत बच्चियों के साथ दोस्ती हुई है, तो फिर पूरी करियर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो यहां से आप लोग तय करें कि आप जो फर्स्ट ईयर में हैं और मजीद 1-1.5 साल आपने गुजारना यहां पर है, तो 1.5 साल जो गुजारोगे किसके साथ गुजारोगे? हम सफर के साथ गुजारना। हम सफर यानी उसका ड्रीम क्या होना चाहिए कि मुझे 700 मार्क्स ले आना है, मुझे JEE में जबरदस्त रैंक ले आना है, ये उसका गोल होना चाहिए। तो फिर आप उसके साथ बैठोगे, योर हाफ जॉब इज डन। जो 4th पॉइंट मैंने रखा ना, इसमें 70% फेल हो जाते हैं। एक लड़का मेरे पास आता है, वो 10th में 98% उसे आते हैं, 11th में 97%, 12th में 96%, और उसका बाप मुझसे कहता है कि सर ये KG से लेकर 12th तक कभी जिंदगी में इसने 2nd पोजीशन नहीं देखा अपनी लाइफ में, ये हमेशा फर्स्ट ही आता गया। तो उसने इंडिया के वन ऑफ द टॉप जो राजस्थान में है, कोटा है, एलन है, वहां पर मैंने एडमिशन दिलवाया। 2 महीने में पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हुई है। क्यों? उसने एक बच्चे के साथ दोस्ती की है और वो ऐसा टेरिबल ड्रग एडिक्ट निकला, 2 महीने में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो बंदा जो पोटेंशियल डॉक्टर बनने वाला था, पूरे खानदान वालों का एक्सपेक्टेशन था, टीचर्स वगैरह पहले से बोला करते थे कि ही इज द फ्यूचर डॉक्टर, लेकिन सिर्फ एक बच्चे से दोस्ती की है जिसका कोई गोल ही नहीं है, जिसका कोई एम्बिशन नहीं है, जिसके कोई डिजायर्स नहीं है, जिसके कोई ड्रीम्स नहीं है, जिसके लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, जो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट ही नहीं करता है बल्कि पेरेंट्स को धोखा दे रहा है। उससे उस लड़के ने दोस्ती कर ली तो 40-40, 50-50 दिन में सिगरेट पीने लगा। जब मेरे पास वो लड़का आया, उसके हाथ ऐसे कांपने लगे,
उसको नीट इम्तिहान लिखा तो 150 मार्क्स आए हैं उसको। वो बंदा जो 700 मार्क्स ले आने की एबिलिटी रखता है और वो स्कोर किया है 150, रीजन क्या है इसका? आंसर मी प्लीज। गलत दोस्ती अपनाई उसने। तो यहां भी अजमल सुपर 40 में आप आकर ये सोचते हो कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, क्योंकि अजमल सुपर 40 इज ए ब्रांड और यहाँ के टीचर्स, यहाँ की फैकल्टी बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, देन यू आर अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन। सिर्फ टीचर से नहीं होता है, 2 वे प्रोसेस से कामयाबी मिलती है, याद रखें। 1 वे प्रोसेस से नहीं होने वाला है। सिर्फ टीचर्स के पास में अगर वो एबिलिटी होती है, ये मैं जिम्मेदारी से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं। मैंने 3 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल्स को पढ़ाया है। अगर टीचर्स में ये कशिश, ये एबिलिटी होती तो सारे बच्चों को टीचर बना देता। टीचर के हाथ में नहीं है, 2 वे प्रोसेस है। ये बच्चों में भी वो डिजायर्स होने चाहिए, वो मेहनत करना चाहिए। आप लोग, अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, टीचर चाहे कितना भी बेहतरीन हो, रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं हर जगह, हर प्लेटफॉर्म से एक मैसेज कन्वे करता हूं, वो भी मैं कन्वे करके मेरी बात खत्म करूंगा। क्लासरूम में आप लोग रोजाना बैठते हैं? आंसर मी प्लीज। क्लासरूम में कुछ मिस्टेक्स होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, बल्कि एक्सीडेंट्स होते हैं क्लासरूम में। क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स। कोई आवाज नहीं आती एक्सीडेंट की, कोई खून आपको नजर नहीं आएगा, कोई पेन महसूस नहीं करोगे आप, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट्स रोजाना होते जा रहे हैं। वो कैसे एक्सीडेंट्स रोजाना होते हैं? बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत गौर से सुने मुझे। With immense pain in my throat, I'm delivering this talk, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं यहां आऊंगा सिलचर में, तो अजमल सुपर 40 को एड्रेस करूंगा। मैंने आपको वादा किया था। हुजैफा साहब जानते हैं मुझे, आई वॉज परस्पायरिंग। आपको भी शायद बताए थे कि सर को और लेक्चर्स है इंडिया में, उन्हें थोड़ा सा रेस्ट दें। तो ये तो खामोश बैठ गए, वेल मैच्योर्ड जेंटलमैन है, लेकिन इनसे पहले भी जिक्र हुआ था कि आप रेस्ट लें सर, क्योंकि कल एक जगह एक स्टेट में, परसों एक जगह एक स्टेट में मैंने कहा कि नहीं, आई हैव डीप अटैचमेंट विद अजमल सुपर 40। अगर मेरा इंतकाल भी हो जाए तो यहां ही दफना दिया जाए, लेकिन मैं जाऊंगा अजमल सुपर 40। ये मेरे कलाम थे आज, मेरा अल्लाह जानता है, क्योंकि जुबान मैंने दी थी, पीछे नहीं हट सकता मैं। तो मैं मेरे कमिटमेंट पूरा कर रहा हूं। आप लोग भी अपने कमिटमेंट्स करें, जो अपने वालिद को कमिट करके आए हो, यहाँ हॉस्टल में रह रहे हो, अपना कमिटमेंट फुलफिल करें आप लोग। जो क्लासरूम में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अब मैं जो जो चीजें बोलता जाऊं, आप लोग एनालिसिस कर लें कि आप भी इन्वॉल्व है इन एक्सीडेंट्स में। आप सच बोले, सच्चा बंदा हमेशा आगे बढ़ता है, झूठ ना बोले। पहला सवाल आप सबसे कि जब एक ड्राइवर कार चलाता है, उसकी नजर, आप एज ए पैसेंजर बैठे हैं और आप सीईओ है कंपनी के, और आप बराबर में बैठे हैं और ड्राइवर कार चला रहा है, और यहां से 100 किलोमीटर दूर आपका डेस्टिनेशन है, आपने पहुंचना है। आप एज ए सीईओ उस ड्राइवर को क्या चाहते हैं? उस ड्राइवर से कि वो आपको डेस्टिनेशन तक छोड़े। मानो कि आप पीछे सीट पर बैठे हैं और ड्राइवर आगे सीट पर है, और वो ले जा रहा है 1 किलोमीटर बिल्कुल सही चलाया, 2 सही चलाया, 3 सही चलाया, 4 सही चलाया, इस तरह से 90 किलोमीटर्स उसने बहुत सही चलाया। 90 किलोमीटर्स पर गाड़ी को थोड़ा स्लो करके वो अपने बॉस सीईओ की तरफ ऐसे देखते हुए ड्राइवर पूछ रहा है कि सर आई लव यू, मैं आपको बहुत चाहता हूं, मैं आपको देखते हुए गाड़ी चलाना पसंद करूंगा। वुड यू अलाउ दैट? क्यों नहीं अलाउ करोगे आप? एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? ड्राइवर की नजर कहां होनी चाहिए?
सड़क पर होनी चाहिए ना। वो अपने बॉस को कह रहा है कि सर आई लव यू, आपको देखता हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, और वो 90 किलोमीटर चलाया। कोई मैथ में 100 में 90 मार्क्स ले आते हैं, इंग्लिश में 90 ले आते हैं, या उसका रिजल्ट 90% आता है, तो वालिदैन खुश होते हैं कि नहीं होते? 99 किलोमीटर ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने बॉस से कि प्लीज लेट मी सी यू, अलाउ मी ड्राइव दिस वे, वुड यू अलाउ दैट? और वो बेचारा 99 मार्क्स ले आया है 100 में, फिर भी आप उससे खुश नहीं है। 1% गलती कर रहा है तो दोनों की मौत हो सकती है। तो ड्राइवर से आप 100% एक्सपेक्ट करते हैं। आज कितने ऑटो ड्राइवर्स रोजाना हिंदुस्तान में स्कूल के बच्चों को धूप से लड़ते हुए, बारिशों से, तूफानों से लड़ते हुए, घर से स्कूल और स्कूल से घर, अपने बच्चों को बुखार है, घर में उसकी बीवी बीमार है, परवाह किए बिना दूसरों के बच्चों को रोजाना स्कूल छोड़ते हैं और वापस घर लाकर छोड़ते हैं, और पूरा 100 मार्क्स रोजाना कामयाब हो रहे हैं। क्या कोई एक बंदा ऑटो ड्राइवर को सल्यूट किया कि हर दिन आप 100 मार्क्स ले आ रहे हो? क्योंकि एक्सीडेंट होता तो एक की जान चले जाती तो बाप जीते जी मर जाएगा, ये तो मेरी दुनिया थी, ये मेरी गुड़िया थी, ये मेरा लाल था, इसका डेथ हो गया। उसकी जिम्मेदारी किसके हाथों में? ड्राइवर के फोकस पर, ड्राइवर के कंसंट्रेशन पर, ड्राइवर के अटेंशन पर। और ड्राइवर 99 मार्क्स ले आ रहा है और कह रहा है 1 किलोमीटर ऐसा चलाने दे मुझे, तो आप अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि उसी 1 किलोमीटर में एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? ड्राइवर का काम क्या है कि उसकी नजर सड़क पर हो, यहां वहां देखते हुए गाड़ी ना चलाए। यहां वहां देखते हुए गाड़ी चलाए तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। इसी तरह क्लासरूम में जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है, स्टूडेंट की नजर किधर होनी होती है? टीचर की तरफ। इधर उधर देखने लगा तो क्या हो रहा है? एक्सीडेंट। कोई आवाज? कोई आवाज नहीं। कोई पेन? कोई पेन नहीं। कोई खून? कोई खून नजर नहीं आ रहा है। 15-20 साल के बाद जब शादी होगी, बच्चे होंगे और ईदें आएंगी, कपड़ों के लिए पैसे नहीं होंगे, इट पिंचेस देन, तब आपको दर्द होगा। बाप बीमार हो जाएगा, डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन करना है, 4 लाख रुपए जमा करें, 400 लोगों के पास भीख मांगे तो 40,000 भी जमा नहीं कर सकता है। देयर इट पिंचेस, वहां दर्द होगा आपको। और उस दर्द का एक्सीडेंट कब हुआ था? व्हेन यू वर इन 10th स्टैंडर्ड, वे बैक 10-20 years ago। 10-20 साल पहले जब आप क्लासरूम में बैठे हुए थे, इल्म हासिल करना था जिससे आपको कामयाबी मिलने वाली थी, लेकिन आप फोकस नहीं थे। आपका एक्सीडेंट एक दफा नहीं, कई बार हो रहा था क्लासरूम में। कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई खून नजर नहीं आ रहा था, कोई पेन फील नहीं कर रहे थे। लेकिन वो पेन कब फील करोगे आप? आफ्टर 20 years, आफ्टर 25 years। आज जितने 40 years के लोग हैं, 50 years के लोग इस भारत देश में जी रहे हैं, उनसे जाकर पूछें कि कैसे तकलीफ में उनकी जिंदगी गुजर रही है, उनके सीने में कितने अरमान हैं, कितने ख्वाहिशात हैं, कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? When they were in the classrooms, they met with many accidents and it happened almost every day। इस तरह से आप लोग के एक्सीडेंट्स रोजाना होते हैं। तो पहली जिम्मेदारी होती है क्लासरूम की, वो फोकस, वो नजर हटाए ना, नजर बनाए रखे अपने ही टीचर पर। अब दूसरी जो चीज है, कुछ लोग देखते जरूर है, 70% बंदे डाइवर्ट हो जाते हैं, यहां वहां देखते हैं, कोई ख्वाबों की दुनिया में भी चले जाते हैं। वो क्या कर रही होगी, यहां मैथ्स पढ़ा रहे टीचर, वो सोच रहा होगा कि वो रेशमा क्या कर रही होगी, वो रोजी क्या कर रही होगी। ये ख्यालों में गुम हो जाते हैं। कुछ लोग तवाफ करने मक्का जाते हैं, कुछ ख्याली तवाफ भी कर लेते हैं। अरे गर्ल्स कॉलेज छूट गया, शायद मैं यहाँ हूं, मुझे वहां होना चाहिए था। ये ख्यालात में भी कई बच्चों की जिंदगी गुजर रही है। तो ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब 70% स्टेज 1 में ही फेल हो गए, यानी फोकस्ड इंडिविजुअल्स नहीं है। दुनिया में इतिहास वही लोग रचते हैं जो फोकस्ड रहते हैं,
Those who remain focused in their lives, they do wonders in their lives. बड़े बड़े काम करते हैं, इतिहास रचते हैं वो लोग. 70% तो वहीं फेल हो गए, बचे कितने? 30%. 30% के एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं. वो नजरें बिल्कुल जमाए रखते हैं टीचर पर, लेकिन सुनते नहीं है. देखते जरूर है, लेकिन क्या नहीं करते हैं? सुनते नहीं है. There is a huge difference between hearing and listening. Hearing and listening. Hearing का मतलब है सुनाई देना. Listening का मतलब है सुनना. कुत्ता भौंक रहा है रोड पर, आप सुन नहीं रहे हो. क्या कर रहे हो? आपको सुनाई दे रहा है. अभी एक हॉर्न बजा है, क्या आपने सुना? वो सुनाई दिया है आपको. सुनने में आपका इंटेंशन का दखल है. आप नियत करते हो. जब आप सुनते हो ना, तो सिर्फ आपके कान इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आपका जहन भी इन्वॉल्व हो जाता है. आपका जिस्म का जर्रा जर्रा इन्वॉल्व हो जाता है सुनने में. हम समझते हैं कि सिर्फ कान का इन्वॉल्वमेंट है सुनने में. नहीं, यू आर मिस्टेकन. योर होल बॉडी कम्स इनटू प्ले व्हेन यू आर लिसनिंग. अब वो जो 30% बचे हैं, 70% तो वहीं फेल हो गए, कचरा बन गए. जब एक ऑयल रिफाइनमेंट होता है ऑयल का, उसका जो वेस्ट होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, कचरा निकल जाता है. तो 70% कचरा तो पहले ही स्टेप में निकल गया, पहले ही पॉइंट में, जो टीचर की तरफ नजर ही नहीं रखते हैं. विराट कोहली या शुभमन गिल जानते हैं? कितने लोग शुभमन गिल को जानते हैं? रेज योर हैंड्स. अच्छा, उसकी गर्लफ्रेंड को भी? गर्लफ्रेंड पर क्यों फोकस कर रहे हो आप लोग? अच्छा, कौन है? अच्छा, सारा है, माशाल्लाह. जनरल नॉलेज अच्छा है. केबीसी से शुरुआत कर सकते हैं आप लोग, फिर यूपीएससी तक जा सकते हैं. इमेजिन करें कि मैं शुभमन गिल हूं, ठीक है? इमेजिन कहा मैंने, और मैं खेल रहा हूं, और ऑडियंस में सारा आप लोग की बहन बैठी है. तो क्या एनर्जी आती है सर, देखिए. जहां ऐसी टॉपिक आ जाए तो फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होता क्लासरूम में. इमेजिन करें मैं शुभमन गिल हूं और स्टेडियम में सारा बैठी हुई है, और मैं स्टांस लिया हूं. स्टांस पता है ना? ये जबरदस्त क्रिकेटर है, हम लोग क्रिकेट भी खेले बहुत. स्टांस खड़े होना होता है. खड़े होने के बाद मेरी नजर किस पर होनी चाहिए? बॉल पर नहीं, सारा नहीं, वहां तो डेथ हो जाएगा. वही बॉलर के उंगलियों पर होनी चाहिए. नहीं नहीं, उंगलियों पर भी नहीं होनी चाहिए. ये क्रिकेटर है, ये जानते हैं. उंगलियों के हरकत पर होनी चाहिए कि ये इन स्विंग डाल रहा है कि आउट स्विंग डाल रहा है, ये स्लोअर वन डाल रहा है कि ये यार्कर फेंक रहा है. इतना फोकस करना पड़ता है बैट्समैन को कि ये हाइट से जा रहा है तो कैसे रोल कर रहा है उंगलियों को. अब आप बैठी है आपकी बहन सारा, और शुभमन गिल डिसाइड कर ले कि मैं, मेरे लाइफ पार्टनर, माई हार्ट थ्रॉब, द मोस्ट गॉर्जियस लेडी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, उसको देखकर, बॉलर वहां है, मैं वहां देखकर खेलूंगा तो क्या होगा? दिल्ली उखड़ जाएगी. कितने खूबसूरत लड़कियां होती हैं स्टेडियम में. अगर अहमदाबाद में मैच होता है तो 1,30,000 लोग चिल्ला रहे, गाने गा रहे, नाच रहे. क्या क्या हो रहा है? क्या इतना नॉइस विराट कोहली को कोई डिस्टरबेंस हो रहा है उससे? नहीं हो रहा है. कोई नॉइस दुनिया की आपको डिस्टरबेंस नहीं कर सकती भाई, जब तक, एज लॉन्ग एज यू रिमेन फोकस्ड. कोई दोस्त आपको बर्बाद नहीं कर सकता. कोई दुनिया की चीज आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती, एज लॉन्ग एज यू रिमेन फोकस्ड इन योर लाइफ. तो जब विराट कोहली एक सेंचुरी लगाता है तो एवरेज कितने बॉल्स खेलता है भाई? वो 90 बॉल्स खेलता है, क्योंकि ये T20 का जमाना है, क्रिकेट फास्ट हुआ है. मान के चले 100 बॉल्स खेलता है. अगर वो अभी तक 70 सेंचुरीज लगा है तो 70 सेंचुरीज में कितने बॉल्स खेले होंगे?
या होल करियर में कितनी दफा वो फेस किया है, उतनी दफा उसकी नजर कहां है? उसकी नजर बॉलर पर है। कौन लड़कियां आई भी है, अनुष्का बेटी भी है, उसको देखकर मैं एक सिक्स लगाऊंगा, नहीं लगा पाएंगे, फेल हो जाओगे। इसीलिए कहता हूं फोकस, नजर टीचर पर होनी चाहिए आप। जो पहला स्टेप है ना, ये क्रिकेटर्स कामयाब क्यों है? क्योंकि उनकी नजर बॉलर पर होती है, तभी जाकर वो खेल पाएंगे, वरना नहीं खेल पाएंगे। दूसरा, मैंने कहा देखते जरूर है लेकिन सुनते नहीं है। कुछ ऐसे एक्टिंग करते हैं जो दिलीप कुमार भी शर्मा जाए ऐसे, तो फिर टीचर समझते हैं अरे भाई ये तो बहुत फोकस्ड है, इंटरेस्ट से सुन रहा है, और टीचर भी वहीं देख रहा है, लेकिन वो कहीं ख्वाबों की दुनिया में है, वो एक्टिंग कर रहा है। तो देखते हैं लेकिन सुनते नहीं है। अब वो 30% जो बचे हैं उसमें 10% ऐसे ही फेल हो गए। अब बहुत कम बच्चे बच गए जो देख भी रहे और सुन भी रहे। वो भी एक गलती करते हैं जिससे उनका एक्सीडेंट होता है। वो देख भी रहे, सुन भी रहे, वो फिजिक्स के टीचर को देख भी रहे और फिजिक्स जो पढ़ाया जा रहा है वो सुन भी रहे। इसी तरह केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बॉटनी और क्या क्या सब्जेक्ट्स आप सब लोग पढ़ते हो, टीचर की तरफ नजर भी है और कान भी दौड़ा रहे हो आप। इसके बाद भी एक गलती है, वो क्या है, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जैसे यहाँ के नौजवान बच्चे हैं, यहाँ शायरी बोली जा रही थी, वाह 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 बोले हैं, वो समझे हैं? नहीं समझे हैं, खाली ऐसे ही वाह वाह बोले हैं। बिल्कुल इसी तरह देख रहे, सुन रहे, लेकिन समझ नहीं रहे। अल्लाह ने जो दिमाग दिया है ना, वो समझने के लिए दिया है, वो स्टडी करने के लिए दिया है। आई एम स्टडिंग 7th स्टैंडर्ड। ये स्टडी किसको बोलते हैं? टू गेट इनटू द प्रोफंडिटी ऑफ द मैटर। सिर्फ रीडिंग को स्टडी नहीं बोलते हैं। रटना, बाय हार्ट करना, मेमोराइज करके एग्जाम में 100 में 100 ले आया, तो वो बंदे ने मेमोराइजिंग स्किल के बेसिस पर 100 ले आया। ही डिड नॉट स्टडी द सब्जेक्ट। 1 साल के बाद वो भूल जाएगा। तो ये रट्टा मारना इसको कहते हैं। वो लोग वंडर्स नहीं करते हैं लाइफ में। कुछ एक अचीवमेंट तो हो जाता है, उनको जॉब भी मिल जाती है, बट दे डोंट डू वंडर्स इन देयर लाइफ बिकॉज दे डिड नॉट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। स्टडी का मतलब है तय तक जाना, डेप्थ तक जाना, उसके बारीकियों को समझने की कोशिश करना। अब क्लासरूम में कई बच्चे हैं जिनका एक्सीडेंट होता है स्टेज 3 में जाकर। वो बड़ा अच्छा देखते हैं, बड़ा अच्छा सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं है। तो फिर 10% बच्चे वहां फिल्टर होकर निकल गए, कचरा बह गया। अब बहुत कम बच्चे बचे हैं जो देख भी रहे, जो सुन भी रहे, जो समझ भी रहे। वो भी एक गलती करते हैं। वो कौन सी गलती करते हैं? वो घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस जो करते हैं वही कामयाब होते हैं अपनी लाइफ में। लोग में ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया, आई डू नॉट नीड एनी प्रैक्टिस। अब मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करूंगा, प्रैक्टिस करना ही छोड़ देते हैं। और कुछ बंदे रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। एक एथलीट होता है, 10 साल प्रैक्टिस करता है गोल्ड मेडल लेने के लिए। वो लेता है नहीं लेता है, इट्स सेकेंडरी मैटर। वो कितने कुर्बानियां, वो स्वीट अवॉइड करता है, वो आइसक्रीम्स अवॉइड करता है, वो पार्टीज अवॉइड करता है। पूरी दुनिया चादर में सोई होती है सर्दियों में, वो 4 बजे पहाड़ों पर दौड़ रहा होता है। सब लोग शादियों में एंजॉय कर रहे होते हैं, वो रात में जिम में काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके सामने एक गोल है, वो गोल तक जाना चाहता है। तो वो बहुत मेहनत करता है, वहां पर प्रैक्टिस रोजाना करता है। 5 साल के बाद उसको इम्तिहान देना है, लेकिन आज से प्रैक्टिस कर रहा है वो। और किसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है? वो जो 100 मीटर्स दौड़ रहा है, वो 100 मीटर्स वो 9.7 सेकंड में दौड़ रहा है, लेकिन 9.6 सेकंड में दुनिया के 50 एथलीट्स दौड़ रहे हैं। और वो मिली सेकेंड इंप्रूव करना चाह रहा है। सिर्फ माइक्रो सेकेंड इंप्रूव करने के लिए 5 साल कुर्बानियां दे रहा है। ना दोस्तों से मिल रहा है, ना शादियों में जा रहा है, ना मीठा खा रहा है, ना आइसक्रीम खा रहा है, ना बर्गर खा रहा है,
ये लड़कियों को जाके पूछिए, बर्गर खाओगे, आवाज आसमान फट जाएगा, इतना चिल्लाएंगे। डायरेक्टर सर के साथ मैं हॉस्टल में जाता था, कल बर्गर पार्टी है, इतना खुश हो जाते थे लड़कियां, जैसे नीट क्रैक कर लिए और एप्रन पहन लिए। इतना शौक है लड़के लड़कियों को कि मैकडी जाए, फलाना खाना खाए, ये ख्वाहिशात है लोगों के। ये सब कुर्बानी दे रहा है वो सिर्फ माइक्रो सेकेंड इंप्रूव करने के लिए, नैनो सेकेंड में उसकी हार हो जाती है। तो प्रैक्टिस रोजाना करना, और प्रैक्टिस किसे कहते हैं? जो चीज नहीं आती है उस पर मेहनत करने को प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं। जो चीज आप जानते हो उस चीज पर मेहनत करना, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। क्यों? इससे पुख्तगी आती है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता आपको। जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है ये अलग बात है, आपको समझ में आ गया सब कुछ, फिर भी आपने प्रैक्टिस करना है, वहीं फेल हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ स्टेज है। आप देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, आप समझ भी रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से आप JEE और नीट में पीछे रह जाते हो। क्यों? जो बंदे आगे गए हैं वो आपसे बेहतरीन अंदाज में प्रैक्टिस किए, आपसे ज्यादा मेहनत किए हैं। तो मैं आपको ये अपील करता हूं कि आपकी नजर टीचर पर हो और कान हमेशा दौड़ाए, जहन दिमाग का इस्तेमाल करें, समझे सब्जेक्ट को, और समझी भी चीज पर बार बार मेहनत करते रहें। और प्रैक्टिस पे ब्रूसली ने कहा कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस one kick 10,000 times। ब्रूसली कह रहा है कि मैं उस एथलीट से नहीं डरता जो 10,000 किक्स एक ही लम्हे में प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन मैं उस एथलीट से डरता हूं जो एक किक 10,000 दफा प्रैक्टिस कर रहा है। एक एथलीट है, उसको अटैक करने के 10,000 तरीके मालूम है। अटैक कर रहा है, किक मार रहा है पैर से, कितने तरीके से मार रहा है? 10,000 तरीके से, और एक ही दफा प्रैक्टिस कर रहा है हर एक किक को। लेकिन ब्रूसली कह रहा है उससे मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन उस इंसान से डर लगता है जो एक ही तरीका जानता है लेकिन रोजाना 10,000 दफा उस पर मेहनत कर रहा है। मैं उस एथलीट से डरता हूं। और वो किक का नाम पता क्या है? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो भी खाएगा फिर मजा नहीं बता पाएगा, मौत हो जाएगी उसकी। ये कहते हैं प्रैक्टिस। सीखी हुई चीज पर बार बार मेहनत करना, ये प्रैक्टिस है। वहां बोर नहीं होना इंसान। तो ये फोर्थ स्टेज में जाकर कई लोग फेल हो जाते हैं। आपने देखा भी, सुना भी, समझा भी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से आपने अच्छा रैंक नहीं ले आया। अब बचकर बहुत कम स्टूडेंट्स बच जाते हैं जो देख भी रहे, सुन भी रहे, समझ भी रहे, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपना नॉलेज शेयर नहीं करते हैं। कंजूस लोग होते हैं। नॉलेज शेयर करना, जेनरोसिटी होना स्टूडेंट्स में। मॉक एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं अगर मेरे नॉलेज इससे शेयर करता हूं तो इसको मुझसे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ये नेगेटिव थिंकिंग है। नॉलेज शेयर करने से कसम खुदा कि कह रहा हूं मैं, आपके नॉलेज में कमी नहीं बल्कि इजाफा होगा। आप 100 दफा प्रैक्टिस करें, एक कोई क्वेश्चन आप दूसरों को सिखाएं जो आप जानते हो, वो 1000 दफा प्रैक्टिस करने के बराबर होता है। तो ये जेनरोसिटी आप में होना चाहिए, जो आप अपने फेलो क्लासमेट्स, फेलो रूममेट्स को आप चाहना कि ये मेरे साथ कामयाब हो जाए, ये मेरा हम सफर है, मेरे साथ पढ़ रहा है, मेरे साथ पढ़ रही है, मुझे तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसे नहीं आ रहे, मैं इसकी भी हेल्प करूंगा, मैं इसकी भी हेल्प करूंगी। जब ये आप नॉलेज शेयर करोगे ना, तो आप 1000 दफा प्रैक्टिस करने के बराबर है। और ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताए, एक देखना, फोकस, दूसरा एक्टिव लिसनिंग, हियरिंग नहीं लिसनिंग, दोनों में फर्क जानते हैं ना आप लोग। तीसरा समझना, चौथा प्रैक्टिस करना, पांचवा शेयरिंग करना, डिस्कस करना। ये 5 जो भी स्टूडेंट्स अजमल सुपर 40 के करेंगे आज से,
और ऐसा जो भी दुनिया का स्टूडेंट करता है, वो भले स्लम में रहता है, झोपड़पट्टी में उसकी जिंदगी गुजर रही है, वो झोपड़पट्टी के बाहर जब वो कदम रखता है, ये 5 चीजें करते हुए, बहरहाल ये 5 चीजें जब आप करोगे तो जाहिर सी बात है आपको परफेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? परफेक्शन आएगा, सब्जेक्ट पर उबूर हासिल होगा। और ये परफेक्शन हासिल करने के लिए ये 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा आपको। फोकस, देखना, सुनना, समझना, प्रैक्टिस करना, नॉलेज डिस्कस करना, शेयर करना। ये करने से क्या होगा? क्या मिलेगा आपको? परफेक्शन मिलेगा। इस परफेक्शन के साथ आप अपने कमरे से, अपने घर से, भले वो स्लम का एक छोटा सा घर है, उसके बाहर कदम रखोगे तो फिर और एक तोहफा आपको अल्लाह की तरफ से मिलेगा। वो तोहफा एक सवारी की शक्ल में होगा। वो सवारी का नाम रोल्स रॉयस नहीं है, वो सवारी का नाम BMW नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, रेंज रोवर नहीं है। वो सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। और उस सवारी में जो भी सवार होता है वो सीधे ले आकर अपने डेस्टिनेशन पर छोड़ती है सवारी, और उस डेस्टिनेशन का नाम है सक्सेस, कामयाबी। अपनी मंजिल तक जाकर आपने कामयाबी हासिल करना है तो कौन सी गाड़ी पर सवार होना है आपको? लाउडली प्लीज। कॉन्फिडेंस की गाड़ी। इसीलिए कहते हैं कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। अगेन एवरीबॉडी, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। पाना चाहते हो तो कौन सी गाड़ी पर सवार होना है? कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? जब आप में परफेक्शन हो। तो परफेक्शन कैसा आएगा? as long as you remain focused, as long as you have active listening skills, as long as you try your best to understand the subject, as long as you practice every day, as long as you help others understand what you know, ये सारे चीजें करने से परफेक्शन मिलेगा। और उस परफेक्शन के साथ आप घर के बाहर कदम रखोगे, एक बेहतरीन सवारी रहेगी। वो मर्सिडीज बेंज नहीं है, वो रोल्स रॉयस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस है। मैं चाहता हूं कि अजमल सुपर 40 के तमाम नीट एस्पिरेंट्स, JEE एस्पिरेंट्स, जब इम्तिहान लिखने जाओगे 5 मई को, तो आप लोग कौन सी गाड़ी पर जाओगे? कॉन्फिडेंस की गाड़ी पर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एप्रन पिलाएगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोग को मदद फरमाए, आप लोग अपने पेरेंट्स को अपने अकम्पलिशमेंट से प्राउड फील करवाए। फिर इंशाअल्लाह मेरा कभी आना होता है, मैं आपको मेरा बेस्ट दूंगा, मैं ट्राई करूंगा आपके दिलों तक मैं पहुंचूं और मोटिवेट करूं। आप सब लोग बहुत खामोशी से, बहुत पेशेंटली, इतने सारे स्टूडेंट्स, मैं सोचा 40-50 बच्चे होंगे, लेकिन इतने सारे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं और इतनी देर से बैठे हुए, माशाल्लाह। ये दलील है कि आसाम में मेरी फैन फॉलोइंग बहुत है। उसका रीजन क्या है? आप लोग को पता है कि वो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए एक टीचर को पसंद करते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर को पसंद करते हैं। वरना बहुत से स्टार्स हैं इस दुनिया में, उनको छोड़कर आप मुझे भी पसंद करने लगे। क्यों पसंद करने लगे? क्योंकि आपके दिलों में उमंगे हैं, डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं। वो रास्ता दिखाने वाला आपको चाहिए, वो पुश करने वाला चाहिए, वो पैटिंग करने वाला चाहिए। मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है, और मोटिवेशन में जान होती है। इट्स लाइक ऑक्सीजन टू द सोल। तो वो माशाल्लाह आप लोगों में है, आप कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे पसंद करते हैं। और मैं यकीन करता हूं लास्ट ईयर जो 23 लड़कियां लड़के मिलकर यहाँ रिजल्ट ले आए नीट में, और मैं नेक्स्ट ईयर आकर आप लोग से फिर मुलाकात करूंगा। आप लोग हाफ सेंचुरी मिनिमम लगाना, सब लोग 50 बच्चे बच्चियां वादा करें हाथ उठाकर कि हम लोग कॉन्फिडेंस की गाड़ी में सवार होकर नीट और JEE में वंडर्स करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच।